नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। राष्ट्रध्वज के बारे में दिए गए मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के बयान के खिलाफ बीदर में कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई विरोध रैली। मंत्री को बर्खास्त करने की गई मांग। कर्नाटक में बजरंग दल सदस्य की हत्या के बाद शिवमोगा में आगजनी तोड़फोड़, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में एफआईआर, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, विरोध के बाद सीएम खट्टर ने स्कूली बच्चों को दी राहत। चारा घोटाले से जुड़े केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 5 साल की कैद, 60 लाख जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के राष्ट्रध्वज पर दिए गए कथित बयान के लिए अप्रसन्नता जाहिर करते हुए बीदर के अंबेडकर सर्कल से विरोध रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की थावरचंद गहलोत से अपील की गई। बता दें कि राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने 9 फरवरी को कहा था कि भविष्य में कभी भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। ईश्वरप्पा के इस बयान की हर तरफ निंदा की जा रही है। उनके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दिए इसी बयान के खिलाफ यह विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, आनंद देवप्पा, संजय जागीरदार, नरसिंह राव सूर्यवंशी, बीदर अर्बन अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, बीदर रूरल के अध्यक्ष चंद्रकांत हिप्पालगांव, दत्तात्रेय मोलगे, एहसान कमल परवेज, मिसबा अहमद, संजू कुमार और दूसरे उपस्थित थे। बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने मेमोरेंडम पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर आनंद देवप्पा, संजय जागीरदार ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस रैली के संबंध में बात की। के लोग मिलकर बनाए सो ये राष्ट्रध्वज है, कोई अकेला आदमी या कोई पार्टी बनाए सो ये राष्ट्रध्वज नहीं। 22 ಜುಲೈ 1947 ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬರೀ ಧ್ವಜ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಏನಂತೀರಿ ತಾವು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಏನು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಂತ ಇದು ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಯಿ ಹರುಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ, ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಧ್ವಜದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ವಿರುದ್ಧ ಇವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು, ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮಿತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮೆಮೊರಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ CLP ನಾಯಕರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಜಾ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಚಡ್ಡಿ RSSನಿಂದ ಬಂದಿನವ್ರು, ಅವರು ಇವತ್ತು RSSನಿಂದ ಬಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅವರು RSS ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ 2002 ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಥ ವಿಷಯ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 72 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು 2000 ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 47ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ RSS ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ 2002 ತನ ಅವರು RSS ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಬರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಆ ಕೂಡಲೇ CM ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡು, ಇದು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ CM ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ್ದು ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೇಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ RSSನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಸರಿ ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ex-CM ಸರಿ ಹೋದಾಗ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ex-CM ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು BJP ಜೆಂಡಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂಧುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜಭವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಖಂಡತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನಿ ಜನದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಮಗೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा शहर में भारी तनाव है। उपद्रवियों ने शहर के अंदर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है तो कई जगह तोड़फोड़ पथराव भी की है। घटना के बाद एहतियातन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं।
इस हमले के बाद गुस्साए लोगों ने इलाके के कई वाहनों में आग लगा दी। आगजनी को रोकने के लिए पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है। इसके अलावा प्रशासन ने सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। पाबंदी के बावजूद बजरंग दल के समर्थकों की भारी भीड़ युवक के शव को घर ले जाने के दौरान साथ दिखी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ से बुरी खबर सामने आई है। दरअसल शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई तो 10 से अधिक लोगों की हालत नाजुक है। यह मामला आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे का है। सूचना के बाद आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं गंभीर हालत वाले सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ इटावा के सैफई थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से इस बारे में रविवार को शिकायत की थी। इसके बाद रात करीब 8:45 बजे सैफई थाना में धारा 130 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्राथमिकी में कहा गया है कि मीडिया को बाइट देने के प्रसंग में उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअली एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। सोनिया ने कहा, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद था और आपने मीलों पैदल चलने के दर्द को सहा, लेकिन मोदी योगी सरकार ने गैर जिम्मेदाराना काम किया और आपके दर्द के बावजूद आपकी ओर से मुंह फेर कर आंखें बंद कर ली। सरकार ने आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। राज्य में अब तक 3 चरणों के वोट डाले जा चुके हैं। राज्य में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही होने की संभावना है। हरियाणा के स्कूलों में छोटी कक्षा के बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाओं से नहीं डरेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कोरोना के कारण स्कूल में बच्चों की शिक्षा पहले ही प्रभावित हुई है और ऐसे में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने के सरकार के फैसले का अभिभावक विरोध कर रहे थे। बच्चों और अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला 1 साल के लिए टाल दिया है। हरियाणा में अब इस शैक्षणिक सत्र में 1 साल के लिए 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हरियाणा में यह फैसला केवल हरियाणा बोर्ड पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि सीबीएसई की परीक्षाओं पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक अगले सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा चालू की जाएंगी। चालू सत्र में स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चारा घोटाले के डोडा कोषागार के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माने की सजा हुई है। 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में सीबीआई अदालत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि 38 दोषियों में से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद है, जबकि लालू प्रसाद यादव समेत 3 अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। चारा घोटाले की 4 विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की सजा पा चुके लालू यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं। लखनऊ में सोमवार को एक चुनावी संभावना जनसभा में केजरीवाल ने शोले फिल्म के मशहूर डायलॉग से विरोधियों को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जनता को डराता है और दूसरा वो जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। अरविंद ने आगे कहा कि शोले फिल्म में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। बिहार पुलिस सप्ताह 2022 के तहत सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सोमवार को पहले दिन मशरक थाना स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बिहार पुलिस का झंडोत्तोलन किया। फिर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार और आरक्षियों ने हाथ में झंडा थामकर कूड़ा करकट साफ किया। पूरे कैंपस को खुद ही चमका डाला। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस सप्ताह के तहत एक सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम लोगों को पुलिस के कार्यों और सड़क यातायात नियमों को खेल, जनसंवाद और भी कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया जाएगा। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि सभी लोग अपने बैरक को भी अच्छे तरीके से साफ रखेंगे ताकि थाना परिसर गंदगी मुक्त हो जाए। मौके पर दारोगा लक्ष्मण प्रसाद, प्रशिक्षु दारोगा अंजलि प्रकाश, जमादार ओम प्रकाश यादव, अजय कुमार सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, हरिनंदन गोस्वामी, सुमन कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। केरल की 62 साल की नागरत्नम्मा ने साबित कर दिया है कि अगर इंसान के अंदर जोश और जुनून हो तो वो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। नागरत्नम्मा ने साड़ी पहनकर पश्चिम घाट की सबसे कठिन चोटियों में से एक अगस्त्यकूडम चोटी को फतह किया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नागरत्नम्मा बड़ी ही आसानी से रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ाई कर रही हैं, वो भी साड़ी पहनकर। एडवेंचर और हाइकिंग ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आमतौर पर बूढ़े लोगों के साथ जोड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर वे शारीरिक रूप से फिट है तो आप किसी सेक्सेजेनेरियन से पहाड़ पर चढ़ने और ट्रैकिंग करने की उम्मीद नहीं कर सकते। मगर नागरत्नम्मा ने सारी धारणाओं को तोड़ दिया है। इंस्टाग्राम पोस्ट कैप्शन के अनुसार बीते 16 फरवरी को वह अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने गई थी। यह उनकी पहली यात्रा थी। शादी के बाद वह पिछले 40 सालों से व्यस्त थी क्योंकि उन पर पारिवारिक जिम्मेदारी थी। तेरे नाम में सलमान खान के साथ नजर आ चुकी एक्ट्रेस भूमिका चावला ने कहा है कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि एक एक्ट्रेस को काम में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसने शादी कर ली है और उसका एक बच्चा है। भूमिका ने 2000 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2003 में अपनी पहली हिंदी फिल्म तेरे नाम आने से पहले उन्होंने कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। कुछ वर्षों तक फिल्मों में काम करने के बाद भूमिका ने 2007 में अपने बॉयफ्रेंड और योग टीचर भरत ठाकुर से शादी कर ली। दोनों का एक 8 साल का बेटा यश है। चीन की तरफ से 4.50 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने से राहत नहीं मिलने से
श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करता था और अब वह 1 अरब डॉलर तक आ चुका है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। एक तो सामान की कीमतें पहले ही आसमान पर है और दूसरे उनको खरीदने के लिए भी दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को भारत की 2.50 अरब डॉलर की मदद से बड़ी राहत मिली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे कई वर्ष से चीन को श्रीलंका का सबसे अहम दोस्त साबित करने में जुटे थे, लेकिन जब चीन ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो उन्हें भारत तारनहार नजर आ रहा है। नतीजे में अब श्रीलंका भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रध्वज के बारे में दिए गए मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के बयान के खिलाफ बीदर में कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई विरोध रैली। मंत्री को बर्खास्त करने की गई मांग। कर्नाटका में बजरंग दल सदस्य की हत्या के बाद शिवमोगा में आगजनी तोड़फोड़, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में एफआईआर, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, विरोध के बाद सीएम खट्टर ने स्कूली बच्चों को दी राहत। चारा घोटाले से जुड़े केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 5 साल की कैद, 60 लाख जुर्माना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।